بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے سب دیکھنے والوں کو میرے چینل کے اوپر خوش آمدید۔ آج ہمارا نیو ناول شروع ہو رہا ہے جس کا نام ہے من مائل، اور اس کو لکھا ہے نازیہ راجپوت نے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کے اس ناول کی زبردست سٹوری کو۔ ہان والے میں مہندی کی تیاریاں پورے زور و شور سے جاری تھی۔ پورے والا کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ لڑکیاں رنگ برنگے کپڑوں میں یہاں سے وہاں ٹہلتی ہوئی نظر آ رہی تھی، جبکہ جنت ذکیہ بیگم کے ہمراہ صبح سے گن چکر بنی ہوئی تھی۔ تیاریاں بالکل مکمل ہو چکی تھی۔ ارسلان احمد خان اپنی فیملی کے ہمراہ مہندی لے کے آ چکے تھے۔ بیوٹیشین فلک کی تیاری کو فائنل ٹچ دینے میں مصروف تھی۔ فلک یلو اور گرین رنگ کے غرارے میں ملبوس ہلکے پھلکے میک اپ اور جولی زیب تن کے بہت خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ خوشی اس کی انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ جس کی چاہ کی تھی وہ اس سے ملنے جا رہا تھا۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کرتی اتنا کام تھا۔ اس کے برعکس جنت پنک اور گرین کرن کے لمبی کرتی اور چوڑی دار پجامے میں ملبوس بنا میک اپ کے سگوار حسن لیے پھر رہی تھی۔ اتنی شدت سے چاہنے کے باوجود بھی وہ اس کا نہ ہو سکا تھا، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ ارسلان اس کو نہیں فلک کو چاہتا ہے، اور فلک کی بھی ارسلان پر اپنا آپ وارتی تھی، لیکن جنت تو ارسلان کو دیکھ دیکھ کر جیتی تھی۔ لاکھ چاہنے کے باوجود بھی وہ اس کو اپنے دل سے نہیں نکال پائی، یہ جاننے کے باوجود بھی کہ وہ اس کا ہونے والا بینوئی ہے۔ وہ اس سے اپنے دل سے دے بیٹھی تھی۔ جنت جانتی تھی کہ اس محبت کی یک طرفہ محبت کے انجام بہت دردناک ہوا کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اس نے ہار نہ مانی تھی۔ ارسلان اس بات سے قطعی واقف نہ تھا کہ جنت بھی ارسلان کو چاہتی ہے، جبکہ جنت آج ارسلان کو اپنے دل کی بات بتانے کا ارادہ رکھتی تھی، یہ جانے بنا کہ اس اظہار محبت کے بعد اس کا دل کتنے ہی ٹکڑوں میں بٹنے والا ہے۔ احمد خان اور باسط خان دو بھائی تھے، جبکہ ان کی ایک بہن دیبا بھی تھی۔ سب سے بڑے احمد خان، جن کی شادی ان کی پسند سے ہوئی تھی، نائلہ بیگم سے۔ شادی کے بعد احمد خان کو اللہ نے دو بیٹوں سے نوازا تھا، بڑا بیٹا ارسلان احمد جبکہ چھوٹا ارسلان احمد تھا۔ باسط خان کی شادی ان کی خالہ زاد ذکیہ سے ہوئی تھی، اور ان کی دو بیٹی تھی، بڑی بیٹی فلک جو کہ اپنی پڑھائی مکمل کر چکی تھی، اور چھوٹی بہن جنت جس کا یونی کا لاسٹ سیمسٹر چل رہا تھا۔ مریم دونوں بھائیوں کی اکلوتی اور لاڈلی بہن تھی۔ کم عمری میں بھی وہ اپنے ساتھ پڑھتے ہوئے یونیفیلے کو دل بیٹھی تھی۔ گھر والوں سے بات کرنے پر احمد اور باسط نے یہی کہا کہ شاہ نواز اپنے گھر والوں کے ہمراہ رشتہ لے کر آئے، جبکہ شاہ نواز کے گھر خاندان والے ان کی شادی ان کی پھپھو زاد سے کروانا چاہتے تھے، سو وہ نہ مانے۔ لیکن بہت ساری قسموں وعدوں کو اٹھانے کے بعد ادیبہ شاہ نواز نے کورٹ میرج کر لی۔ دیبا کے چھپ کے شادی کرنے میں باسط خان نے غصے میں آ کر ان سے تمام رشتے ناطے توڑ لیے تھے کہ دیبا اور شاہ نواز اب ایک فلائٹ میں قیام پذیر تھے۔ شادی کے ایک سال میں ان کے ہر ایک خوبصورت بچی کی پیدائش ہوئی، جس کا نام ان دونوں نے مل کر دانیہ رکھا تھا۔ شادی کے 2 سال گزرنے کے بعد ایک دن اچانک ہی دروازے پہ دستک ہوئی۔ شاہ نواز نے دروازہ کھولا، لیکن مقابل کی بات سنتے وہ سخت پریشانی میں مبتلا ہوئی۔ دیبا سے یہ کہہ کر کہ وہ ان کا انتظار کرے، وہ لوٹ کر آئیں گے، چلے گئے۔ 4 ماہ 8 ماہ حتیٰ کہ 1 سال گزر جانے کے بعد بھی جب وہ نہ لوٹے تو دیبا دانیہ کو ساتھ لیے اپنے بھائیوں کی چوکھٹ پر پہنچی تھی۔ باسط خان کو ان کا دیکھنے کے بھی روادار نہیں تھے، لیکن احمد خان کے سمجھانے پر ان کے دل میں دیبا کے لیے گنجائش پیدا ہوتی چلی گئی۔ دونوں بھائی اپنی بہن کو معاف کر چکے تھے۔ دانیہ سبھی کو بہت پسند آئی تھی، خاص طور پر اسلان کو۔ اسلان دانیہ سے 6 سال بڑا تھا، لیکن وہ شروع دن سے دانیہ کے بارے میں بے حد حساس تھا اور اس کی چھوٹی موٹی باتوں کا خود خیال رکھتا۔ دن یوں ہی ہنسی خوشی گزرتے چلے گئے، لیکن دیبا کو آج بھی شاہ نواز کی کمی محسوس ہوتی تھی، جو واپسی کا وعدہ کر کے نہ جانے کہاں چلے گئے تھے۔ 25 سال بعد فلک ارسلان کی پہلی نظر کی محبت تھی، جو اس کو بہت جلد ملنے والی تھی۔ ارسلان اپنے باپ کا کاروبار سنبھال رہا تھا، جبکہ اسلان ایس سی پی کے عہدے پر فائز تھا۔ 3 سال ارسلان احمد خان کی کسی بھی لڑکی کی خواہش ہو سکتا تھا۔ وہ بظاہر 23 سال سنجیدہ نظر آنے والا لیکن دل کا نرم ارسلان احمد خان یہ خوبصورتی کا منہ بولتا ثبوت تھا، جبکہ 28 سال اسلان احمد خان 6 فٹ 7 انچ تک کا سرتی وجود، 6 پیکس، ہزاروں لڑکیوں کا کرش تھا، لیکن اس کی نظر اور دل میں تو کب کی دانیہ آ کے بھی سما چکی تھی۔ 27 سالہ فلک باسم خان بھی اپنی مثال آپ لگتے تھے، گوری رنگت پر کالے ریشمی بال۔ فلک بہت سیدھی اور سادہ
اور मासूम लड़की थी। ना कि कभी इसने दोस्त बनाए और ना ही कभी इसने लड़कियों वाले शौक वाले। अरसलान इसकी मासूमियत पे ही तो मर मिटा था, जबकि इसके बरक्स 25 साल जन्नत, बासम हाथ, दूध मलाई जैसी रंगत पर सुनहरे रंग के बाल, नीली आंखें इसे मजीद दिलकश बनाती थी। दूसरी जानों अगर बात की जाए दानिया की, तो 24 साल दानिया शाहनवाज, गोरी रंगत पर बुरे लंबे बाल, गहरी हीज आंखें और इस पर अनारी लबों के करीब भूरी शान से चमकता तेल, जो के मुकाबल का सुख अहमद खान से चुराया था। हुसन इसने दीबा अहमद खान से चुराया था। दानिया के FSC में टॉप करने पर अहमद खान ने दानिया और दीबा दोनों की ख्वाहिश पर इनको चाइना भेजा था, ताकि वो डॉक्टरी की डिग्री हासिल करके वापस अपने वतन लौट सकें। इस लाख को जब दानिया के चाइना जाने का इल्म हुआ तो वो बहुत बरहम हुआ। भला इन दोनों के दरमियान भी अभी कोई मजबूत रिश्ता ना बना, लेकिन फिर भी इसने दीबा के अलावा कभी किसी की चाह न की थी, ना ही किसी ने इतनी शिद्दत से ख्वाहिश की थी। लेकिन शायद किस्मत कुछ और ही मंजूर था। अरजान और फरक की मेहंदी की तकरीब शुरू हो चुकी थी। आला से आला इंतजाम किया गया था। जकी बेगम तो बस अरसलान और फरक की बुलाएं ले रही थी। जकिया दोनों को एक साथ देख, जबकि जन्नत दूर एक कोने में खड़ी इन दोनों को हसरत भरी निगाहों से देख रही थी। कितनी शिद्दत से चाहा था इसने अरसलान को, लेकिन क्या था अगर वो इसके हो जाता। इसने तो हमेशा अरसलान को ही अपने लिए सोचा था। बचपन से ही अरसलान को जन्नत पसंद करती थी, लेकिन ये पसंदगी कब मोहब्बत में बदली इसे इल्म न हो सका। लेकिन अब भी वक्त था, और भी अरसलान को अपने दिल की बात बता सकती थी। क्या पता अरसलान को इस पर रहम आ जाए, इसकी मोहब्बत पर यकीन आ जाए, वो फैसला इसके हक में दे डाले। वो मौके की तलाश में थी, कब अरसलान अकेला हो और इसे अपने दिल की बात बताए। अभी वो इसी इंसान में खड़ी थी कि अरसलान को अकेला ऊपर जाता देख इसके पीछे हो रही। अरसलान जो फलक के कमरे में किसी अहम कार को सुनने आया था, जन्नत को अपने पीछे खड़ा देख हैरान होते गोया, हाँ जन्नत तुम यहाँ इसका क्या कर रही हो। अरसलान के बाद जन्नत तेजी से अरसलान की जानिब बढ़ती है। गोया हमें आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत चाहती हूँ आप। जन्नत अरसलान के कॉलर को जबरे बहती हुई आंखों से समेत गोया हुई। जानती हो ना कौन हूँ मैं, तुम्हारी बहन को होने वाला शोर, तुम्हारा बेनोई। लेकिन तुम फिर भी बेशर्मों की तरह धड़ल्ले से अपने सौ कॉल्ड मोहब्बत का इजहार कर रही हो। अरसलान जन्नत की मेहंदी लगे हाथों को बुरी तरह झपकते हुए लाल आंखों समेत गोया हो अपना रुख मोड़ा कि जन्नत ने तड़प कर इसका रुख अपनी जानिब मोड़ा था। मैं जानती हूँ कल आपको और फलक की आपी की शादी है, लेकिन अरसलान में अपने दिल के हाथों मजबून हो। अगर आज आप अपने दिल की बात ना कहती तो शायद जिंदगी में कभी न कह पाती। ये सब जानने के बावजूद भी तुम अपनी मोहब्बत का खुल इजहार कर रही हो। जानती हो तुम जैसी लड़कियों से नफरत है मुझे, तो जो सरेआम बेशर्मों की तरह अपनी इज्जत की भी परवाह न करते हुए अपने दो टकी की मोहब्बत का इजहार करें। अजलान ने सुलगते लहजे में कहते जन्नत को खुद दूर धकेला वो जमीन पर जाकर गिरी, लेकिन अजलान ने बेहिस बनता वहां से निकलता चला गया। जब भी जन्नत ने आगे बढ़कर इसके पांव पकड़ लिए थे। अजलान में अपने दिल का क्या करूं जो सिर्फ आपके लिए धड़कता है। जन्नत बहती हुई लाल आंखों समेत लहजे में बस्ती लिए गोया हुई। तो समझो अपने दिल को, क्योंकि मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ फलक के लिए धड़कता है और तामर इसी के लिए ही धड़केगा। अजलान ने सर्द और सपाट लहजे में कहता झटके से अपना पाँव इसकी गिरफ्त से आजाद करता है कमरे से बाहर की राह ली, जबकि जन्नत वहीं जमीन पर बैठी अपनी हाली हाथों को घूरती रही। माशाल्लाह से कितनी प्यारी लग रही है, अपनी नजर न लगे। जन्नत ने एक नजर फलक को देखकर कहा, जो प्योर रेड कलर के लहंगे में खूबसूरत मेकअप व खानदानी जेब तन की दुल्हन बनी इंतहाई खूबसूरत दिखाई दे रही। तुम भी बहुत प्यारी लग रही है गुड़िया। फलक ने जन्नत के चेहरे को अपने हाथों के प्याले में बढ़ते हुए कहा। जन्नत की आंखों से बहते हुए आंसू देख फक्रमंद हुई। क्या हुआ गुड़िया, क्यों रो रही है। कुछ नहीं आपी, बस आज आपकी रुखसती है ना, फिर आप ये घर छोड़कर चली जाएंगी, यही सोचकर दिल पर आया। जन्नत की बात सुनते फलक धीमा से मुस्कुराई थी। अरे पगली देखो, तुम्हें जब जब मेरी याद आएगी ना, तुम मुझे से मिलने इस घर से जा रही हूँ, तुम्हारे दिल से तो नहीं ना। फलक के कहने पर जन्नत ने नीम आंखों समेत सर को इस बाप में हिला गई। निकाह हो जाने के कुछ देर बाद रुस्सी से शोर उठा। फलक हंसती खुशी अरसलान की हमरा जिंदगी के नए सफर पर रवाना हुई थी। जनक फलक को देखकर बहुत खुश थी। इसे तस्लीम कर लिया था कि अरसलान का साथ इसकी किस्मत में नहीं था। इसके लिए इतना ही काफी था कि इसकी बहन कुछ है, बहन भी जो वो इस पर जान छिड़कती थी। फलक जैसे प्यार करने वाली, जान देने वाली बहन ऐसी हजारों मोहब्बतें कुर्बान, सो इसने अपनी मोहब्बत और फातह पढ़ ली। और अलग बात थी कि लाख कोशिश के बावजूद भी अरसलान को अपने दिल से नहीं निकाल सकी। फलक बेड पर बैठी नर्वस सी उंगलियां मरोड़ने में मसरूफ थी। एक नजर वाकला की जन्म देखा जो 11 के इंसा अबूर कर चुकी थी। अरसलान भी वक्त कमरे में आता होगा सोच कर ही इसने घबराहट हो रही थी। अरसलान ने खुद से बेपनाह मोहब्बत से वो वाकफ थी, लेकिन आज इससे अरसलान की आंखों में अलग ही जुनून दिखाने को मिला था। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम थी जब ही अरसलान कमरे में दाखिल हुआ और दाखिल होकर दरवाजे को लॉक करते सोफे की जाना बढ़ा और अरसलान की शेरवानी उतारता देख फलक की रही से हिम्मत भी जवाब हवा हुई थी।
अब अरसलान सिर्फ बनियान पहने हुए था, मुस्कुराते फलक की जानब कदम बढ़ाए थे और फलक के करीब ही बेड पर बस जमा हुआ। जानती हो कब से इस वक्त का इंतजार कर रहा था मुझे, और देखो आज वो दिन आ ही गया जब तुम मेरे लिए पूरी पूरी सजी हुई। जानती हो मैंने तुम्हें तब से चाहा जब मैं खुद मोहब्बत के मानी से नावाकिफ था। जानती हो तुम्हारी इस मासूमियत ने, इस शर्म खया ने, इस डरे सहमे लहजे ने अजलान खान को अपना असीर कर लिया है। फलक, मैंने जिस शिद्दत से तुम्हें चाहा, इतनी शिद्दत से मैं तुम्हें खुद में शामिल कर लेना चाहता हूँ। अजलान की बेबाक गुफ्तगू पर फलक के कान की लौह तक सुर हुई थी कि अजलान का सुर्ख होता चेहरा देखने के इसका सुर होता चेहरा देखते मुस्कुरा कर रह गया था। अजलान, मेरी मुंह दिखाई कहाँ है? फलक ने जड़ से याद आने पर पूछा कि अजलान ने इसकी जानब मोहब्बत पाश निगाहों से देखते हुए 60 रो की जानब झुका और वहां से महमली डबिया निकाली। ये रही तुम्हारी मुंह दिखाई। डबिया इसकी जानब बढ़ाते हुए कहा कि फलक ने डबिया को हाथ में लेते हुए खोल कर देखा, जिसमें डायमंड की खूबसूरत रिंग थी। पसंद आई? अजलान ने दिलचस्पी सोचा, हाँ बहुत खूबसूरत है। फलक ने मुस्कुराते हुए कहा और अजलान ने आगे बढ़कर इसके बालों की निकलती हुई रेत को पीछे हटता सा गबरू लहजे में कहता, फलक को बजल कर गया, खूबसूरत तो है लेकिन तुम जितनी कहाँ। अजलान, ये रिंग पहनाएंगे नहीं? फलक ने अजलान का ध्यान भटकाने को कहा, लेकिन अजलान इसकी चालाकी को खूब समझ गया। जब भी मुस्कुरा कर रिंग इसके सीधे हाथ की तीसरी उंगली पर पहना दी और पहनाते ही फलक की कमर में हाथ डालते इसे खुद पे गिरा गया था कि फलक इस अचानक हुई आफत पर घबरा उठी। जान अजलान, आज राह फरार मुमकिन नहीं, बहुत मुश्किल से कंट्रोल किए हुए थे तुम्हारे अजलान खुद पर, अब और नहीं। लेकिन अजलान, आपने तो बताया ही नहीं कि मैं कैसी लग रही हूँ। फलक ने अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए कहा, जाने अजलान, मैं बहुत प्रैक्टिकल बंदा हूँ। लफ्ज़ों के बजाय मेरा क्या किया गया हर अमल तुम्हें बताएगा कि तुम आज कितनी खूबसूरत लग रही हो। अजलान ने आंखों में हुमा लिए मुस्कुरा कर कहा और झटके से फलक की सांसों को अपनी दस्तरस में लेते फलक को अपनी मोहब्बत के रंग में रंगता चला गया। जन्नत बेटा तैयार हो तो चलें। जक्की बेगम ने जन्नत के रूम में दाखिल हुई थी तो बोली, तो आज इन्हें फलक के यहाँ नाश्ते लेके जाना था। जी मॉम, रेडी हूँ मैं, चलें। जन्नत ने मुस्कुराते हुए कहा। जक्किया ने एक नजर अपनी बेटी की जानब देखा जो स्काई ब्लू कलर के सादा से फ्रॉक और चूड़ीदार पजामे में सुनहरी बालों को गोला छोड़े बिना किसी मेकअप और झुल्ली के दुपट्टे को सर पर रखे इंतहाई सादा लेकिन बहुत खूबसूरत लग रही थी। जक्किया बेगम ने दिल ही दिल में इसे देखते माशाल्लाह कहते कदम बाहर की जानब बढ़ाए थे। माशाल्लाह मेरी बच्ची, ये रूप टूट कर आया है, अल्लाह नजर बस से बचाए। जक्किया बेगम ने फलक को देखते हुए कहा जो पिंक कलर के प्रिंटेड कमीज ट्राउजर जैब किए हुए थे, इनके कहने पर चपसी की। जन्नत बेटा नाश्ते लगाओ टेबल पर। जक्किया बेगम ने जन्नत को देखते हुए कहा जो कब से अजलान को देख रही थी, जो मुसलसल फलक को मोहब्बत पाश निगाह से देख रहा था। रहने दो, मुलाजमा है ना ये काम करने को, वो कर लेगी। जन्नत बेटे तुम यहाँ आकर मेरे पास बैठो। नाहिला बेगम ने प्यार से कहा कि जन्नत उठ के इनके पास जाकर बैठी। अब मेरी माने तो जल्दी से जन्नत के फराइज से भी सब दोष हो जाए। नाहिला बेगम ने जन्नत का हाथ थामते कहा, हाँ भाभी, इसका लास्ट सेमेस्टर रह गया, इसके बाद ही कुछ सोचेंगे। बहरहाल बासम के दोस्त के बेटे का प्रपोजल आया है, हमारी मर्जी है कुछ टाइम में एंगेजमेंट कर दें दोनों की। जन्नत ने मंगनी वाली बात पर छठ से अजलान की जानब देखा जो इसकी मुकम्मल नजरअंदाज किए फ़ोन पर मसरूफ था। इसने जन्नत को यूँ इग्नोर किया था जैसे वो दोनों यहाँ पे मौजूद ही ना होते। देख जन्नत का दिल कटका जब भी वो उठी और किचन की जानब बढ़ने लगी जहाँ फलक गई थी। इससे पहले कि वो किचन में जाती इसे एक जोरदार चक्कर आया। इससे पहले कि वो ज़मीन बॉस होती अजलान ने इसको बाहों में थाम लिया। जन्नत बेटे, जन्नत मेरी जान, क्या हुआ? जकिया बेगम जन्नत को बेहोश देखकर फिक्रमंद होती बोली जो अजलान की बाहों में बेहोश पड़ी थी। फलक, तुम्हें इसे संभालो, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। अजलान ने कहते हुए डबल पर पड़े हुए मोबाइल को उठाते फैमिली डॉक्टर को कॉल मिलाई। डॉक्टर, मेरी बहन को क्या हुआ? ठीक तो हो जाएगी ना? फलक जन्नत के लिए फिक्रमंद होती बोली। दरअसल पेशेंट को काफ़ी तेज़ बुखार है और लगता है इन्होंने कल से कुछ खाया पिया भी नहीं, इसलिए वीकनेस हो गई है। बट परेशानी कोई बात नहीं है, मैंने मेडिसिन लिख दी है और इंजेक्शन भी लगा दी है। जैसे ही होश आए इनको कुछ हल्का फुल्का खिलाकर ये मेडिसिन देनी है। डॉक्टर ने पेशेवराना अंदाज में कहा, ओके डॉक्टर, थैंक यू। अजलान ने बमुश्किल मुस्कुराते हुए कहा, यह लड़की बिल्कुल भी अपनी हार नहीं रखती। कल रात भी इसने कुछ नहीं खाया तो कामों में उलझी रही, लेकिन इसे तो खुद का ज़रा एहसास नहीं। जकी बेगम ने ज़्यादा लहजे में कहा, जबकि नाइला जकिया को साथ ही कमरे से बाहर आई थी। अब कमरे में सिर्फ फलक, अजलान और जन्नती थे। अजलान, आप प्लीज़ फलक के पास ही बैठिएगा, मैं इसके लिए खाना लेकर आती हूँ। जन्नत अजलान का इख्तबार चली गई बढ़ गई, जबकि अजलान बेड पर ही बैठा हुआ था, जन्नत को तेज निगाहों से घूर रहा था। कुछ देर बाद जन्नत को होश आ गया था। मंदी मंदी आंखें खोलते हुए इसने अपना सर पर हाथ रखते हुए दबाया कि इसका सर दर्द से फट रहा था। सुर सूजी हुई आंखें रोने की निशानदेही कर रही थी।
मुझे क्या हुआ था? जन्नत सर को थामते हुए बोली। ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं जन्नत, बासिम खान अच्छी तरह से जानता हूँ तुम जैसी लड़कियों को कितना गिरोगी। और मेरी नजर में तुम, हाँ, ये बेहोश होने का टांग किया था तुमने ताकि मेरी बाहों में आकर गिरो और मेरे करीब आने के बहाने ढूंढती हो ना। सही से बताओ, चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? चाहती हो क्या हो तुम मुझे? अजलान जन्नत को बाजू से पकड़े हुए बोला। छोड़े मुझे अजलान, मुझे दर्द हो रहा है और मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। मुझे कोई शौक नहीं है आपके करीब आने का। जन्नत आंखों में नीवी ली अजलान से आवाज करने की तकव्वुदू करने लगी, जबकि अजलान ने झटके से अपने करीब किया, जिसके नतीजे में उसके मजीद नजदीक में तुम्हें लास्ट बार वार कर रहा हूँ, मुझसे और फलक से दूर रहो। आप पागल हैं, एक बार की हुई बात समझ नहीं आती आपको? मैं आपकी और फलक के बीच पाले ना, फलक को आप मिल गए ना सुकून, तो मुझे भी अब सुकून से रहने दें। जन्नत ने झटके से अपना बाजू अजलान की गिरफ्त से आजाद करवाया। इससे पहले कि अजलान कुछ किया था, फलक खाने की ट्रे लिए कमरे में दाखिल हुई। जन्नत तुम्हें होश आ गया, आप कैसा फील कर रही गुड़िया? फलक ट्रे को साइड पर रखते हुए जन्नत का हाथ थामते हुए गोया हुई। जी आप ही, मैं ठीक हूँ। तुम बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखती, फलक फिक्रमंद होती हुई बोली, जबकि जन्नत निगाहें बेसादा इस्लान पर की जो इससे ही देर निगाहों से घूर रहा था। अभी ऐसे कुछ नहीं रखती हूँ ख्याल, बस कल शादी की थकन के बायस खाना बिना खाने के सो गई थी। जन्नत ने झूठ बोला था, क्या करती? फलों को सच भी तो नहीं बता सकती थी कि इसने खाना नहीं किया, क्यों इसकी तबीयत खराब हुई। आया चलो छोड़, तुम खाना खाओ अभी और मुझे ये बताओगे पप्पो कैसी हैं? वो क्यों नहीं आई? फलक ने दीपा को पूछा। अभी पप्पो की तबीयत भी कुछ अपसेट थी, वो शादी के झंझट में अपनी सेहत को फरमाश कर बैठी थी। जानती तो हैं आपको, इनका बीपी हाई था, इसलिए मॉम ने इन्हें रेस्ट करने को कहा, लेकिन आप फिक्र न करें, वो आएंगी आपसे मिलने कुछ दिनों में। जन्नत ने चेहरे पर झूठी मुस्कान से जाते हुए कहा। अजलान दोनों बहनों को बातें करता देख कमिसी की जाने से बढ़ गया। हाय जन्नत, आप ही कैसी हैं आप? और यार ये क्या, आप अपनी तबीयत भी खराब कर ली? माना कि शादी के काम होते हैं, लेकिन ये इसका ये मतलब तो नहीं कि बंदा अपनी सेहत भी समझौता कर ले। दानिया जन्नत से वीडियो कॉल पर बात करती हुई बोली। ठीक हूँ मैं, तुम बताओ वैसे कैसी हो? यूनी में एडमिशन हो गया? हो गया आपी, एंड मैंने आपको सबको बहुत मिस किया। काश मैं फलक आपी की शादी में मौजूद होती, कितना मजा आता हमें। हाँ ये तो चलो कोई बात नहीं, अब तुम अच्छे से दिल लगा के पढ़ो और जल्दी से वापस आ जाओ। यार मुझे तुम्हारे हाथ की बनी हुई कॉफ़ी बहुत पसंद, बहुत दिल करता है। जन्नत मुस्कुराती हुई बोली, क्यों नहीं, बल्कि आऊंगी। फलक आपी आपको शादी हो गई है? फलक आपकी शादी होगी है, आपकी होनी है ना? आपकी शादी में तो मैं नहीं करूंगी भाई, दानिया ने मुस्कुरा कर कहा। जन्नत इसकी बात पर मुस्कुरा भी ना सकी। अच्छा आप भी अभी रेस्ट करें, मुझे अपने कपड़े प्रेस करने हैं, और हाँ याद से मुझे शादी की सारी वीडियो फोटो सेंड कर दीजिएगा। ओके ठीक है, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़। जन्नत ने कहकर फ़ोन बंद करने के फ़ोन को साइड पर रखा और खुद का सर तकिए हुए रखते आंखें मूंद गई, लेकिन कुछ ही देर में वो वापस आंखें खोल गई। अजलान का आज का दिन वाला रवैया याद करके अश्क अपने आप ही आंखों से बह निकले थे। उम्मीद आंखों से कोसों दूर थी। जन्नत जूने से थकी हारी वापस आई तो आती ही सोगी। 4 बजे करीब जाकर उसकी आंख खुली तो लंबे सुनहरी बालों को रफ सा जुड़ा बनाए वो वार्डरोब की जानिब बढ़ी और वहां से अपने लिए पिंक कलर का सादा फ्रॉक और ट्राउजर का इंतखाब करते हुए वॉशरूम में जाना पड़ गई। 15 मिनट बाद वो गीले बालों समेत बाहर आई। ड्रेसिंग के सामने आ खड़ी हुई ताकि ड्रायर की मदद से बाल खुश कर रहे। अभी वो इसी इंसान आ खड़ी थी जब इसके रूम का डोर नॉक हुआ। यस आ जाएं। जन्नत की इजाजत देने में मुलाजमा दरवाजा खोल के अंदर दाखिल होते ही गई। छोटी बेबी बड़ी बेगम आपको को नीचे अच्छे से तैयार होकर आने का कहा है, कुछ मेहमान आए हैं नीचे। मुलाजमा कहने में जन्नत चूंकी थी, लेकिन जल्द ही खुद को कंपोज करते सर को स्लैब में हिलाती इसने बालों को खुश किया और बिना मेकअप के खुद पर परफ्यूम स्प्रे करते इसने दुपट्टे को सर पर ओढ़ते दुधाली पाँव में वाइट कलर के खुस्से पहने नीचे गिरा ली। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जन्नत नीचे डाइनिंग रूम में आई तो देखा कि बासिम खान के दोस्त अपनी फैमिली के हमरा आए हैं। उनके सबको यूँ हंसता मुस्कुराता देख इसका यकदम दिल धड़का उठा। वालेकुम सलाम जन्नत मेरी जान, यहाँ मेरे पास बैठो। इशफाक साहब की अहलिया शमाइला बेगम ने जन्नत को अपने पास बुलाया था, जबकि जन्नत छोटे छोटे कदम उठाती इनके पास जाके बैठी। माशाल्लाह भाभी कितनी प्यारी है हमारी बड़बई, हमें तो अब तो मुझसे और इंतज़ार नहीं होता, बस जल्दी से हमें तारीख दें ताकि हम आपकी बेटी को अपने घर की रौनक बनाए। शमाइला बेगम कहने पर जहाँ बाकी सब मुस्कुराए थे वहीं जन्नत घबराई थी। नीली आंखों में नीमी चमकी थी कि अचानक जन्नत की नज़र अपने सामने बैठे नुमान पर पड़ी, जो मुसलसल ऐसे देख रहा था कि जन्नत इसके देखने से कन्फ्यूज होती वहाँ से उठी थी जब इस जक्के बेगम के पुकार पर ठहरी। जन्नत बेटे मुलाजमा से कहकर चाय पानी का बंदोबस्त करवाओ। जी मामा मैं कहती हूँ। इससे पहले कोई किचन की जाना बढ़ती बासिम खान की बात सुनते इसका चेहरा फक हुआ। मेरे ख्याल से अगले हफ्ते को हम मंगनी रख लेते हैं और मंगनी की चंद माह बाद शादी का क्या ख्याल है? इशफाक और भाभी आपका? जी भाई
हमें कोई एतराज़ नहीं है, जैसा आपको बेहतर लगे। शमाइला बेगम ने मुस्कुराकर गोई हुई थी कि जन्नत नीम आंखें लिए मंजर से हटी थी। होगी बात चाची से। अरसलान जन्नत को फ़ोन पर साइड पर रखते हुए देखकर बोला, हाँ होगी, नेक्स्ट वीक जन्नत और नमान की एंगेजमेंट है और चंद माह बाद शादी। फलक ने अरसलान की जानब देखते हुए कहा, जिसका खलकत तक कड़वा होता जन्नत के नाम सुनकर। चलो अच्छी बात है, मुबारक हो तुम्हें। अरसलान ने नॉर्मल लहजे में कहा, खैर मुबारक अरसलान, लेकिन मुझे जन्नत का अच्छी तरह से पता है, वो अभी शादी नहीं करना चाहती, वो अपना कैरियर बनाना चाहती हो और डैड इसकी शादी जल्दबाजी कर रहे हैं। चाचा जान कोई जल्दबाजी नहीं करे, बहन बेटी जितनी अपने घर की जल्दी हो जाए ना इतने ही अच्छे। और रही बात कैरियर की तो शादी के बाद भी बना सकती है। आपकी बात ठीक है अजलान, लेकिन मैं चाहती हूँ ना जन्नत दिल से कभी राजी नहीं होगी। फलक जस्ट स्टॉप एट किया, हर वक्त जन्नत जन्नत करती रहती हो, कभी मेरी और अपनी बात भी कर लिया करो। अजलान खौफ से बोला तो कि फलक को अपनी गलती के एहसास हुआ। जब भी वो छोटे छोटे कदम उठाती अजलान के करीब सोफे पर जा टिकी। अच्छा ना अजलान, सॉरी यार, मैं जन्नत को लेकर परेशान हूँ, एक दफ़ा इससे बात करूँगी तो तसल्ली हो जाएगी। फिर अजलान का हाथ थामते हुए बोली कि अजलान फ़कत सर हिलाता वो उठ खड़ा हुआ। फलक जानती थी वो अब भी नाराज़ है। इससे पहले कि वो अजलान आगे बढ़ता, फलक ने इसको अपनी और खींचा, जिससे वो सीधा इसके ऊपर आन गिरा। अजलान के हमार आलूद बेहकी नजरें निगाह में देखते फलक घबराते हुए पलकों की चलवन गड़ा गई। वो मैं आपको मनाना चाहती थी, फलक ने अजलान की करबत में हल्काते हुए कहा। अच्छा तो जान अजलान, मनाओ ना, मैंने कब मना किया है, मैं कब मनाने से रोका है। अजलान के बोझल लहजे को महसूस करती फलक की हथेलियां पसीने से तर होगी। मेरा ख्याल है कि मुझे ताई अम्मी बुला रही हैं, अब तो मैं तुम्हारी ताई अम्मी बुला रही, या फिर ताई अम्मी की अम्मी अम्मी जाने दो, तो मैं तुम्हें नहीं देता। अजलान के लहजे में शरारत को महसूस करती फलक को इससे घूर कर रहेगी, जबकि वो डीठा और बेबाक था। फलक को इसके साथ एक माह गुजार कर अच्छी तरह पता चल चुका था। इससे पहले कि फलक कुछ और कहने के लिए कोशिश करती, अजलान फौरन इसकी गुलाबी लबों को अपनी सख्त गिरफ्त में लेता इसकी बेजोर सी मुज़ाहमत का भी गला घोंट गया। और ना यार, आज यूनी का पहला डे है और दानिया तुम पहले दिन ही ले। दानिया वाल क्लॉक पर नजर डालती बोली, जो अब 8 बजा रही थी। वो फौरन से उठी और वार्डरोब की जानिब बढ़ते हुए इसने जीन्स और इसके साथ ब्लू कलर की शॉर्ट फ्रॉक इंतखाब किया और वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। 15 मिनट के बाद गीले बालों समेत बाहर आई और ड्रेसिंग के सामने खड़े होते हुए इसने बालों को ड्राई किया बिना ही खुला छोड़ दिया। गहरी हील्स आंखों में काजल डालते इसने नारी लबों पर हल्का सा ग्लोस लगाया। अपने शूज पहनने लगी, गले में स्टॉलर डालते इसने बैग उठाते साइड टेबल पर पड़ा अपना मोबाइल उठाया और कमरे से बाहर की जानब कदम बढ़ाए। क्योंकि आज यूनी में इसका फर्स्ट डे था तो फिलहाल इससे कोई दोस्त ना बना था और आगे बढ़कर रही थी जब इसे खुद पर कुछ फासले पर एक लड़के लड़कियों का ग्रुप दिखाई दिया। किसी लड़के ने रोने की आवाज़ सुनकर वो फौरन इसके जाना बढ़ी, ये क्या हो रहा है और आप क्यों रो रही हैं। दानिया ने निम्रा को रोते हुए देखकर पूछा कि आपकी बार काली से आंखें गहरी हील्स आंखों से टकराई। हमारे दोस्त से टकराने वाले का यही अंजाम होते हैं जो इस डप्पू सी लड़की का हुए हैं। उम्मीद है सबको समझ आ गई होगी। आइंदा कोई भी सैफ मिर्ज़ा से पंगा लेने से तो क्या, बात करने से पहले सोचेगा। सैफ मिर्ज़ा का दोस्त हामिद गोया हुआ कि दानिया को इसके कहने पर गुस्सा आया, तभी वो चिल्लाई, क्यों तुम्हारा दोस्त में सरखाफ की पर लगे हैं या तुम्हारे दोस्त किसी वली उल्लाह की लड़ी में से है। दानी के दो टकन तापत सैफ मिर्ज़ा ने अपनी मुट्ठियां बीजी थी, जबकि काली आंखें लाल हुई थी। मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, गलती से इनसे टकराई तो इनकी असाइनमेंट पानी में गिर गई। निम्रा रोते हुए बोली कि सैफ तेज में आता। निम्रा पर हाथ उठाने लगा कि वहीं हाथ दानिया ने पकड़ा और तड़क कर बोली, खबरदार जो दोबारा ऐसी गिरी हुई हरकत घटिया हरकत करने की कोशिश भी की तो तरबियत तुम्हारी साफ वाजी हो रही है तुम्हारे इस संबल से। जानते हो, एक सच्चा मर्द वो होता है जो औरत को इज्जत देना जानता हो, ना कि इस तरह जाहिलों की तरह हाथ उठाए। और जो मर्द औरत पर हाथ उठाते हैं मर्द ही ना मर्द होते हैं, जैसे कि तुम। नानी ने अपनी बात खत्म करके सैफ को सजा में उठा हाथ झटक दिया और निम्रा को साथ लेती हजूम से निकलते जगह पर सैफ ने लाल अंगार होती आंखों और नफरत से दानिया की फर्श को तका था। फलक ने बिरयानी को दम लगाते हुए एक नजर बाहर निकलकर लॉन्च में लगी वाल क्लॉक पर डाला, जो अब 12 का हिस्सा अबूर कर चुकी थी। अजलान की आज 2-3 अहम मीटिंग्स थी, जिसकी बिना पर आज सुबह बिना नाश्ते के घर से निकल गया था। इसलिए फलक ने इसकी फेवरेट बिरयानी बनाई ताकि वो ऑफिस जाकर दे के आ सके। वैसे भी अरजान घर का बना हुआ साफ सुथरा खाना पसंद करता था और फलक ने यही सोचा कि ऑफिस जाकर इसे सरप्राइज देगी। फलक ने ड्रेसिंग के सामने खड़े होकर सुरसुरी निगाहों पर डाली। रेड कलर का लॉन्ग फ्रॉक पहने, आंखों में काजल डाले, पलकों को मस्कारे से बोझल किए, लबों को लाल रंग से रंगे, गले में सोने की चेन डाले, वो कानों में रेड कलर के ही अवेजे डाले, पाँव में रेड कलर की पेंसिल हील पहने, बेड पर पड़ा रेड कलर का दुपट्टा शानों में लिपटे, इतने ड्रेसिंग पर पड़ी परफ्यूम उठाकर खुद पर स्प्रे करते हुए साथ टेबल पर मोबाइल उठाया और नीचे की जानब कदम उठाई
मुलाजिम पहले ही बिरयानी के बॉक्स गाड़ी में रखवा चुके थे। नाइला बेगम को बताकर वो गाड़ी में आगे बैठी थी। अजलान ऑफिस में बैठा मोबाइल में व्हाट्सएप ओपन किए फलक को ही कॉल करने वाला था, जब भी फलक शीशे के दरवाजे को धकेलती हुई अंदर दाखिल हुई। फलक, तुम यहाँ? अजलान चेहरे पर खुशी लाई बोला। सरप्राइज। फलक ने मुस्कुराकर बिरयानी बॉक्स टेबल पर रखते हुए बोला। तुम यहाँ अचानक कैसे आई? अजलान फलक के करीब होते इसी कमरे में हाथ डालते हुए बोला। आपने सुबह नाश्ता नहीं किया था ना, इसलिए आपकी फेवरेट बिरयानी बना के लाई हूँ। चलें अब बैठें और खाना शुरू कीजिए। फलक मुस्कुराते हुए बोली कि अजलान ने मोहब्बत भरी नजरगाहों से इसकी जानब देख इसके लबों को झुकना चाहा। जब भी फलक ने इसके लबों पर अपनी हथेली जमाई और गोया हुई शराफत से खाना खाने पहले फलक ने घूरते हुए कहा कि अजलान मुस्कुराते हुए सर को इसबाब में हिला गया। फलक ने बिरयानी प्लेट में निकालते अजलान की जान बढ़ाई। जब भी अजलान गोया हुआ, जब बनाई हुआ दे तो खिला भी दो। अजलान के कहने पर फलक दिलकशी से मुस्कुराती सर को इसबाब में हिला के चावल को चम्मच भरते अजलान की जान बढ़ाने लगी कि अजलान ने मुस्कुराते हुए मुंह खोला। जान अजलान, तुमने सिर्फ बिरयानी ही बनाई थी, कोई मीठा नहीं बनाया क्या? अजलान ने खाना खाने के बाद फलक की गुलाबी लबों को घूरते हुए शरारत से कहा था कि फलक परेशानी के बायस गोया हुई। सॉरी अजलान, टाइम कम था तो मैं सिर्फ बिरयानी ही बना सकी। कोई बात नहीं जाने अजलान, मेरे पास एक और ऑप्शन भी है। अजलान ने बोझल लहजे में आंखों में हमारे लिए सुर्खी टाई की नाइट डीली करते हुए फलक की हैरानी से गोया है। कौन सा ऑप्शन? ये वाला ऑप्शन। इससे पहले कि फलक कुछ समझी, अजलान पूरी शिद्दत से इसकी सांसों को दस्तरस में ले गया कि फलक इसकी शिद्दत पर डरते हुए इसकी शर्ट का कॉलर को जकड़ गई। कुछ पलों की तौसीफ के बाद अजलान पीछे हटा और एक नज़र फलक के लाल होते चेहरे पर डाली। अजलान, हम ऑफिस में हैं, फलक हल्काते हुए बोली। सो व्हाट बेबी, तुम मुझे इस टाइम चाहिए तो बस चाहिए हो। हम इस वक्त कहाँ पर हैं ये चीज़ मैटर नहीं करती, तुम इस वक्त मेरे सामने हो ये चीज़ मैटर करती है। और आज तो अजलान की जान पूरी रेड वेवलेट केक ही बना आई है तो मैं कैसे ना खाऊं? अरसलान ने कहते सादनत की गर्दन से दुपट्टा उतारा था और मुस्कुराकर इसकी गर्दन में झुका था कि बाहर खड़ा होकर हुआ कोई वजूद मंजर देखकर जलकर खस्तर हुआ था। एक हफ्ता कैसे गुजरा मालूम ना हो सका। आज जन्नत और नमान की मंगनी थी। मंगनी की तकरीब हान में लगे ही बड़े से वजी व अर्ज लाइन में हो रखी गई थी। जन्नत को नमान में और इसकी मंगनी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बस वालदेन की खुशी की खातिर ये करवा गुड बनने को मादा हो गई थी। वो अपनी हो सोचे में घर थी जब ज़किया बेगम दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। जन्नत बेटे, तुमने अभी तक चेंज नहीं किया, अभी ट्यूशन भी आ चुकी है, 1 घंटा बाकी है रस्म शुरू होने में। ज़किया बेगम जन्नत को देखते हुए बोली, जो बेड पर बैठी किसी गैर मरी नुक्ते को घूर रही थी। इनकी आवाज़ सुनकर होश की दुनिया में लौटी। जी माम, बस जा रही हूँ। जबकि ज़किया की जन्नत देखने का ज़किया की नज़र जब इसके सुर्ख आंखों पड़ी तो चुंक उठी। जन्नत, यहाँ देखो, तुम रोती हो रही हो। नहीं नहीं तो अब माँ से भी बातें छिपाओगी? ज़किया बेगम ने यूँ कहने पर जन्नत की आंखें फिर से भीगने लगी। माँ, मैं आप और डॉट के बिना कैसे रहूँगी? अरे पगड़ी, अभी थोड़ी ना तुम्हारी शादी हो रही है, अभी तो मंगनी हो रही है, अभी तो पूरे 4 माह पड़े हैं मेरी जान। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं भी ट्यूशन को भेजती हूँ तुम्हारी जान, मेरी जान। ज़किया बेगम प्यार से भरे लहजे में कहकर जन्नत के माथे पर बोस देती ही चली गई। वो कमर से बाहर की जाने बड़ी थी जबकि जन्नत ने बेदेरी से बेड पर पड़े सिल्वर कलर की मैक्सी उठाते वाशरूम को जाने पड़ी थी। जन्नत शीशे के सामने बैठी बेदिली से खुद का जायजा ले रही थी। सिल्वर कलर की मैक्सी जेब पहन के हल्की फुल्की मेकअप और लाइट सी ज्वेलरी में भी वो दिल धड़का देने का हुस्न अपने पास महफूज रखती थी और इसी इंसान में बैठी थी जब फलक और दरवाज़ा खोल कर अंदर दाखिल हुई। माशाल्लाह, मेरी गुड़िया कितनी प्यारी लग रही है, अल्लाह नजरें बुरी नज़रों से बचाए। फलक की बात सुनते जन्नत ने फलक को देखा जो ब्लैक कलर के फ्रॉक में लाइट से मेकअप मैचिंग ज्वेलरी जेब पहन के बहुत खूबसूरत लग रही थी। आप ही, आपका भाई? मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ, मोम से मेरी कसीर है तुम्हारे पास आई हूँ। अच्छा आप ही? जन्नत व मुश्किल मुस्कुराती है कोई। अच्छा चलो गुड़िया, रस्म का वक्त हो गया है, नमान की फैमिली भी आ चुकी है। फलक जन्नत हाथ पकड़ी इसको अपने साथ लिए कमरे से बाहर की जाना पड़ गई। जब जन्नत फलक की हमरा बाहर आई थी तो हर्ष उठने वाली निगाह इस पर ठहर सी की थी। नमान वाइट कलर के शलवार कमीज में मबलूस स्टैचू बैठा जन्नत के ही इंतजार में था। जब जन्नत को सामने से आता देखा, इस पर से निगाह हटाना ही भूल गया। जन्नत अजलान की नज़र इस पर बेसाख्त हुई पड़ी थी। लम्हे भर कर अजलान और जन्नत की निगाह मिली थी और अजलान को खुद की बेबहुदी पर भी जी भर के ताव आया था। जन्नत को नमान के साथ बैठा दिया गया था। रस्म अदा होने के बाद फलक जन्नत को इसके कमरे में लेके गई थी। जब कने जाने क्यों अजलान को जन्नत की रोई रोई शिकवा करती सुर आंखें बेचैनी में मुतला कर गई थी। जन्नत ड्रेसिंग के सामने खड़ी अपने हाथों में गजरे पहने गजरे उतार रही थी। जब दरवाजा दस हो इसका मान इजाजत मिल पर नमान दरवाजा खोल कर अंदर दाखिल हुआ जबकि जन्नत इसको देखकर चुमकी थी।
आप यहाँ क्यों? क्या मैं आपके कमरे में नहीं आ सकता? नमान ने शौक लहजे में जन्नत की जानब झुकते हुए कहा, नहीं, वह मेरा मतलब नहीं। तो फिर क्या मतलब था? नमान ने हमार और लूल लहजे में कहते जन्नत का हाथ थामना चाहा। इससे पहले कि जन्नत अपना हाथ पीछे कर दी, नमान ने इसका हाथ पकड़ते इस पर अपने लब रखते हुए गया हुआ, शुक्रिया जन्नत, मेरी जिंदगी में आने के लिए और मुझे कबूल करने के लिए। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, तुम्हें मुझसे कोई शिकायत न हो, हमेशा तुम्हारा वफादार रहूंगा। नमान की बातें सुन जन्नत की आंखों में नींद चमकी थी। किस्मत ने कैसा पलटा खाया था। जब बातें मजलान से सुनना चाहती थी वो नमान ने कह डाली थी। दोनों इसी इंसान में खड़े थे। अचानक से दरवाजे पर हुई दस्तक दोनों को अपनी जान बताई, आ जाएं। जन्नत के कहने पर फलक अंदर आई। मैंने आप दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? अरे नहीं आपी, ऐसी कोई बात नहीं, आप आए ना। जन्नत तेजी से कोई है वो, दरअसल नमान आपको इशफाक अंकल बुला रहे हैं। फलक ने मुस्कुराते कहा, जी आपी, मैं बस जा रहा हूँ। नमान ने कहते ही गहरी निगाह जन्नत पर डाली और कमरे से बाहर कदम बढ़ाए। तुम खुश हो ना गुड़िया? फलक ने जन्नत के हाथ थामते हुए कहा, जी आपी खुश हूँ। जन्नत ने झूठी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए कहा, ऐसा जन्नत कितनी खूबसूरत लग रही है ना आज। फलक ड्रेसिंग के सामने बैठी हाथों पर लोशन लगाती ही बोली, जबकि इस्लान जो बेड पर बैठा लैपटॉप में हाथ थामे ऑफिस की कोई प्रेजेंटेशन बनाने पर मसरूफ था। इसकी बात पर चुनका, हाँ लग रही होगी, मैंने तो खासा ध्यान ही नहीं दिया। क्यों, आपका ध्यान कहाँ था फिर? फलक ड्रेसिंग से उठकर अजलान के करीब आकर बैठती बोली, मेरा सारा ध्यान तुम पे था, तो किसी और पर ध्यान कैसे क्यों कर जाता? अजलान ने लैपटॉप को साइड पर रखते हुए फलक की कमर में हाथ डालते से करीब खींचते कहा, अरजान सो जाएं आप, रात काफी हो गई है, सुबह ऑफिस भी जाना है। कहकर फलक ने उठना चाहा, जब भी कलाई अरजलान की गिरफ्त में आ गई और वो इसकी कलाई से खींचता खुद पर गिरा गया कि फलक की पलकें खुद बहुत झुकी थी। दिल यकबारी से धड़क उठा था। अरजलान, आप क्या कर रहे हैं? फलक ने बेतहाशा धड़कते दिल से कहा, मुझे कुछ देर के लिए सुकून चाहिए। मतलब तुम? अरजलान घबरू लहजे में कहता। फलक की सांसों को अपनी दस्तरस में ले गया था। दानिया आज थोड़ी लेट हो गई थी। रात को लेट नाइट मूवी देखने के बाद इसकी आंख सुबह के 8 बजे जाकर खुली। जब भी वो बिना नाश्ते किए ही घर से निकल आई, जैसे वो यूनिवर्सिटी सामने से निमरा ग्राउंड में चलती हुई दिखाई दी, जो यकीनन इसी का इंतजार कर रही थी। आप इतनी देर कर दी? क्यों क्यों लगा दी दानिया? मैं कब से वेट कर रही थी आपका। सॉरी स्वीटी, दरअसल मैं कल रात तक जागती रही हूँ ना, तो इसलिए सुबह आंख भी देर से खुली। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, अब जल्दी आए, क्लास में चलते हैं। वैसे भी आपको पता है ना, आए सर मास की क्लास है, उन्होंने कल बताया था कि रिसर्च वर्क के लिए लो लड़कियों के मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाएंगे। हाँ याद है, चलो चलें। केकर वो आगे की जाने बढ़ गए। जी तो दानिया, आपका पार्टनर सेफ होगा। आप दोनों ने एक साथ मिलकर काम करना है, रिसर्च करनी है और जल्द अज जल्द मुझे रिपोर्ट देनी है। सर माल ने दोनों की जानब देखते हुए कहा कि साथ ही दानिया की उठी। सॉरी सर, लेकिन मैं इनके साथ काम नहीं कर सकती। बेशक आप मुझे किसी और ग्रुप में शामिल कर दें। दानिया ने सैफ की जानब देखते हुए कहा। सैफ ने अपनी लहू रंग आंखें दानिया की आंखों में गाड़ी। दानिया, अब कुछ नहीं हो सकता, सब ग्रुप्स कंफर्म हो चुके हैं और बाकी ग्रुप्स में गुंजाइश भी नहीं है, लिहाजा आप लोग एक क्लास मेट की तरह ही काम करेंगे। जी सर ठीक है, दानिया ने बेदिली से कहा। जन्नत की मंगनी को एक माह गुजर चुका था। एक माह में नवान जन्नत को हर जगह साथ ले जाने की जिद करता, लेकिन जन्नत सिर्फ एक मरतबा ही इसके साथ शॉपिंग में गई थी। इसे कहीं आने जाने को दिल नहीं चाहता था। इसकी फाइनल एग्जाम हो चुके थे, इसकी पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी थी, लिहाजा वो ज्यादातर वक्त ज़किया बेगम के साथ किचन में गुजारती थी। दोस्तों से मिलना मिलाना भी कम कर दिया था और फलक के यहाँ भी बहुत कम जाती थी। आज अरजलान और फलक के घर पार्टी रखी गई थी, क्योंकि अरजलान की कंपनी को सिर्फ बेस्ट कंपनी का अवार्ड मिला था और इतना ही नहीं, इनकी न्यू लॉन्च की गई प्रोडक्ट्स ने मार्केट में खूब नाम कमाया था, जिसकी बिना पर अब हर कोई अरजलान के साथ काम करना चाहता था। अरजलान तो हर किसी को यही कहता फिरता था कि इसकी कामयाबी के पीछे इसकी मनपसंद बीवी फलक का हाथ है। जन्नत आज भी जाने को बिल्कुल राजी नहीं थी, लेकिन ज़किया बेगम स्टार्ट पर तैयार हो चुकी थी। ग्रीन कलर के ओपन शर्ट और ट्राउजर पहन किए, लाइट से मेकअप और ज्वेलरी में बहुत प्यार खूबसूरत लग दिखाई दे रही थी। ज़किया बेगम ने इसको देखते ही इसकी लाइन ले डाली थी। ज़किया बेगम बासम खान फलक के घर पहुंच गए थे। मेहमान वगैरह सभी पहुंच चुके थे। फलक रेड कलर की साड़ी ज़ेब के हल्के फुल्के मेकअप और लाइट से ज्वेलरी ज़ेब की इंतहाई खूबसूरत दिखाई दे रही थी, जबकि अजलान ब्लैक कलर के 3 पीस में इंतहाई जाज़ब दिखाई दे रहा था। तकरीब का इंतजाम लाइन में ही किया गया था। मुल्क के मारूफ बिजनेसमैन और शोबिस के नामवर सितारे भी पार्टी में मौजूद थे। हर कोई अजलान और फलक की जोड़ी को सराह रहा था। अजलान फलक की कमर में हाथ डाले इसके कान में जुगे हंसते हुए कुछ कह रहा था। वहीं जन्नत की आंखों में इन दोनों को देखे कि आंसू जमा हो चुके थे, जिनको वह नाकाम रोकने की कोशिश करती। ऐसा नहीं था कि वो फलक से जेलस हो रही थी, बल्कि इसने भी ऐसे कई ख्वाब देखे थे। जो ख्वाब में अजलान इसके मना था, तो इसी इंसान के हाथ में खड़ी थी। जब भी इसके करीब से वेटर गुजरा था। वेटर ड्रिंक्स की ट्रे थी। पेरेंट्स बिगड़ने की वजह से वेटर के हाथ से ट्रे स्लिप हुई और सारी ड्रिंक्स
زمین بوس ہو گئی تھی. نیچے گرنے کی وجہ سے کچھ چھپٹے جنت کے کپڑوں پہ بھی آ کر گرے. ویپر اپنی کوتاہی پر گھبرا گیا. سوری میم سوری. اٹس اوکے, جنت نے پریشانی کے عالم میں کہا, جبکہ فلک اس کے قریب آئی. کیا ہوا گڑیا, تمہارے کپڑے ڈرنک کیسے گری؟ آپ ہی ویٹر سے گر گیا تھا غلطی سے. اچھا چھوڑو, تمہیں واش روم لے کر چلتی ہوں, چینج کر لو. یہ تو کافی خراب ہو گئے ہیں, برا لگ رہا ہے ایسے. فلک نے جنت کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا اور اس کو ساتھ ہی آگے کی جانب بڑھ گئی. جنت نے فلک کے دیے ہوئے کپڑے پہنے تھے جو فلک کے ہی تھے. براؤن کلر کے شارٹ فراک اور تنگ پاجامے میں انتہائی دلکش دکھائی دیے. فلک کے ہی کپڑے تھے جو اس کو ارسلان نے گفٹ کیے تھے. جنت کو اچھا نہیں لگ رہا تھا لیکن فلک نے اس کو زبردستی پہنا دی. جنت چینج کر کے روم سے نکل رہی تھی جب ارسلان روم میں داخل ہوا. ارسلان جو اپنے موبائل اٹھانے روم میں آیا تھا, جنت کو فلک کے دیے ہوئے کپڑوں میں دیکھ کر اس کا چہرہ غصے کی زیادتی سے لال ہوا. جنت ارسلان کے لال چہرے کو دیکھتے گھبرا اٹھی اور یہاں سے جانے کی معافیت سمجھی. اس سے پہلے کہ کمرے سے باہر نکلتی, ارسلان نے ایک چیز میں اس تک پہنچ کر اس کی پشت پر دیوار سے لگائی. تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری فلک کے کپڑے پہننے کی؟ ارسلان نے جنت کے چہرے پر جھکتے ہوئے لہو رنگ آنکھیں جنت کے زیادہ ہوتی آنکھوں میں ڈالی. ارسلان, فلک آپ ہی نے خود دیے ہیں پہننے کے لیے. جنت ارسلان کی کربت اور غصے دونوں سے گھبراتی ہوئی ہوئی. اس نے دیے تم نے پہن لی. ہاں میں نے کہا نہ تھا کہ مجھ سے اور فلک سے دور ہو, ہمارے درمیان آنے کی کوشش مت کرنا تم. ارسلان, آپ بات کو کہاں سے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ میرے کپڑوں میں ڈرنک گری تھی, خراب ہو گئی تھی. کپڑے اس لیے میں نہیں پہنے اور میں نہیں پہننا چاہتی تھی. فلک آپ نے اصرار کیا جب بھی پہنے. جنت نے بھیگی آنکھیں سمیت کہا. ارسلان نے اپنا ہاتھ کا مکہ بنا کر دیوار پر دے مارا. جبکہ بنا پر جنت کی جی بحث آتے جو بھی تھا, تمہیں یہ کپڑے نہیں پہننے چاہیے تھے, اور اگر آئندہ تم نے میرے فلک کی کسی بھی چیز کو ہاتھ لگایا تو مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہوگا. ارسلان نے زہریلے لہجے میں کہا تھا کہ جنت نے بہتے آنسوؤں کے درمیان ارسلان کی آنکھوں میں دیکھا. تو کیا وہ اس سے اس حد تک نفرت کرتا ہے؟ یہ سوچ کر جنت نے ارسلان کے دونوں بازوں کو ہٹایا تھا جو اس کی اطراف میں جمائے تھے, اور ایک آخری شکوہ گنا نگاہ اس کے چہرے پر ڈالتی منظر سے ہی ہٹ گئی تھی. فلک رات کو اپنی نگرانی میں سارے کام کروا کے اپنے کمرے میں پہنچی تو ارسلان کو کمرے میں ٹہلتا پایا. ایسا لگا کہ وہ اب تک سو چکا ہوگا لیکن وہ ابھی تک جاگ رہا تھا. فلک ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ہوتی, اپنی جوڑی اتارنے لگی. لمبے بالوں کو اونچا جوڑا بنایا وہ اپنے کام میں مگن تھی جب اسے اپنی گردن پر کسی کی پرتوش سانسیں محسوس ہوئی. اس نے ایک نظر دیکھا تو ارسلان بنا شرٹ کے پینٹ میں ملبوس اس کی جانب صرف آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. فلک نے تھونگ نگلتے وہاں سے ہٹنا چاہا جب ہی ارسلان اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنی اور کھینچ گیا. ارسلان جی کیا کر رہے ہیں آپ؟ تم نے فلک کو کیے دی وہ ڈریس جنت کو پہننے کے لیے؟ تم کوئی اور بھی دے سکتی تھی. تم جانتی ہو نا تمہارے لیے لایا تھا, کتنے پیار سے, تم نے ایک بار بھی نہیں پہنا, پھر کیوں دے دیا تم نے؟ بچاؤ مجھے. ارسلان فلک کی کمر پر اپنی انگلیوں کا دباؤ بڑھاتے بولا. ارسلان نیچے منہ, مجھے بلا رہی ہوں, جلدی میں دے دیے میں نے, ویسے سامنے رکھا تھا تو کیا ہوا, میری بہن نے پہن لیا تو جنت اور میں الگ تھوڑی ہیں, دونوں الگ ہو. فلک, میں تمہیں اور تمہاری کوئی بھی چیز کسی کے ساتھ نہیں مار سکتا پلیز, اور پھر تمہاری سکی بہن ہی کیوں نہ ہو. ارسلان نے لال آنکھیں لیے فلک کی جانب دیکھتے کہا. فلک نے ناراضگی سے اس کی جانب دیا. چھوڑے مجھے ارسلان, آپ پاگل ہو چکے ہیں. بالکل, میں اور جنت الگ نہیں ہیں, ہم سکی بہنیں ہیں. ہاں میں پاگل ہوں, تمہارے معاملے میں پاگل ہوں میں, اور یہ بات تم اچھی طرح سے جانتی ہو, اس لیے میں تمہاری پہلی اور آخری غلطی سمجھ کے معاف کر رہا ہوں. تمہیں آج تک کے بعد تم میری کوئی بھی لائی ہوئی چیز جو میں نے اسپیشل تمہاری لائی ہو جنت کو نہیں دو گی. میں برداشت نہیں کروں گا. گو ہیڈ. ویٹ. ارسلان نے سراتے ہوئے لہجے میں کہتے فلک کی گردن پر اپنے لب رکھتے کہا کہ فلک کی پورے وجود میں کرنٹ دوڑا تھا. اس سے پہلے کہ وہ اس سے دور ہوتی, اس کی دونوں کلائیوں کو اس کی پشت پر لگاتے وہ اس کی سانسوں کو اپنی دست میں لے گیا تھا. رات کا نہ جانے کون سا پیر تھا, وہ شراب کی بوتل ہاتھ میں پکڑے لال آنکھیں لیے ارسلان کی تصویر کو گڑ رہی تھی. آج جب اس نے پارٹی میں ارسلان اور فلک کو ایک ساتھ دیکھا تھا تو اس کی پتن بدن میں گویا آگ ہی لگی تھی. ارسلان کی پرسنل سیکرٹری تھی. اس کو ارسلان کے ساتھ کام کرتے 5 سال ہو گئے تھے, اور ان 5 سالوں میں کب ارسلان اس کے دل میں آپ بسا اسے معلوم ہی نہ ہوا, اور ارسلان سے شادی کرنا چاہتی تھی. آخرکار بہت ہمت کر کے اس نے ارسلان کو اپنے دل کی بات بتانی چاہی تھی. اس سے پہلے ارسلان کی شادی فلک کے ساتھ فکسڈ ہو چکی تھی. یہ خبر سن کر شنایا کا دل ٹوٹ چکا تھا. ہر بری لت اسے لگ چکی تھی. وہ ارسلان پر صرف اپنا حق سمجھتی تھی. اس دن آفس میں اور آج پارٹی میں ارسلان اور فلک کو تقریب دیکھ کر اس کا برا وجود سلگتی بٹی میں جل رہا تھا. ارسلان, تم صرف میرے ہو, تمہیں پانے کے لیے کسی بھی حد سے گزر جاؤں گی, لیکن تمہیں اپنا بنا کر ہی دم لوں گی, یہ میرا خود سے وعدہ ہے. شنایا ارسلان کی تصویر سے ہم کلام ہوتی ہوئی آنکھیں موڑ گئی. دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے. فلک اور ارسلان اور دانیہ اور سیف آپس میں بہت خوش تھے. گزرتے ہر دن ان کی محبت میں اضافے کا سبب بن رہے تھے. جبکہ
اس کے بعد جنو تو جیسے جینا چھوڑ چکی تھی. اس کی بھی شادی کے دن قریب آ رہے لیکن اس کو کسی چیز میں کوئی دلچسپی نہیں تھی. شادی میں ایک ماہ بچہ تھا اور تیانی کافی رہتی تھی. اس سے پچھلے ایک ہفتے سے فلک ذکیہ بیگم کے ساتھ گن چکر بنی ہوئی تھی. آج اس کو ارسلان کے ساتھ واپس جانا تھا. شام کا ٹائم تھا اور ارسلان آنے والا تھا. فلک شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کی تیاری کا جائزہ لے رہی تھی. نارجی رنگ کے اوپن شرٹ، ٹراؤزر زیب تن کیے، لمبے بالوں کو کلپ میں قید کیے، کانوں میں وائٹ کلر کے ویزر ڈالے، میک اپ کے نام پر آنکھوں میں کاجل ڈالے، لبوں کو اورنج کلر کی ہی لائٹ سی لپسٹک سے رنگے وہ ارسلان کے آنے کا انتظار کر. جب ہی اسے ذکیہ بیگم نے آواز دی ارسلان آ چکے ہیں تو جلدی سے نیچے کی جانے بڑھی. ارسلان آپ نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ مام کتنا اصرار کر رہی تھی. فلک ارسلان کی جانب دیکھتی ہوئی بولی جو ڈرائیو کر رہا تھا اس لیے نہیں ہوگی کہ میں بنا دیر کیے تمہیں کھانا چاہتا ہوں. ارسلان یکدم گاڑی کو بریکس لگاتے ہوئے گھبری آواز میں کہتا. فلک کو اپنی اور کھینچتے ہوئے اس کے لبوں کو اپنی درست میں لے گیا تھا. فلک اس اچانک وفات پر گھبرا گئی. کچھ پلوں کی توفیق کے بعد ارسلان پیچھے ہٹا اور فلک کا لال چہرہ دیکھا کہ فلک کی پلکیں حیا کے مارے جھکی تھی. اس سے پہلے کہ کہا ارسلان فلک کی گردن پر چپتا. فلک کی یکدم ومٹ آئی اس لیے وہ تیزی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلتے ہوئے نیچے سڑک پر ہی بیٹھ گئی. ارسلان پریشان ہوتا باہر نکلا. فلک میری جان تم ٹھیک تو ہو نا؟ نہیں ارسلان مجھے میری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی. اچھا اٹھو تم ہم اسپتال چلتے ہیں. ارسلان نے فلک کا بازو پکڑتے ہوئے اسے کمر سے تھاما تھا. ڈاکٹر پلیز بتائیں میری وائف کیسی ہے؟ ارسلان نے ڈیڈی ڈاکٹر کے ہمراہ آتی فلک کو دیکھ کر پوچھا جو شکل سے بیمار دکھائی دے رہی تھی. دیکھتے مسٹر خان اب آپ کو اپنی وائف کا پہلے سے زیادہ خیال رکھنا ہوگا. یہ کافی ویک ہیں سو ان کو پراپر ڈائٹ کی ضرورت ہے. پر ڈاکٹر ہوا گیا ہے سب ٹھیک تو ہے نا؟ ارسلان پریشانی سے گویا ہوا جبکہ ڈاکٹر مسکرائی تھی. مبارک ہو مسٹر خان آپ کی وائف ایکسیپٹ کر رہی ہیں. ڈاکٹر کی بات سنتے ہی جہاں ارسلان کے چہرے پر خوشی کے تاثرات چھپے تھے وہیں فلک کا چہرہ لال ہوا تھا. میں آپ کو کچھ سپلیمنٹس لکھ کر دیتی ہوں یہ ٹائم پر لیجیے گا اور اپنی وائف کا بہت خیال رکھیے گا. اوکے تھینک یو سو مچ ڈاکٹر. ارسلان مسکرا کر ڈاکٹر سے سلپ لیتے ہوئے فلک اپنے ساتھ لیے باہر کی جانے بڑھ گیا. ارے بیٹا تم لوگ آ گئے. نائلہ بیگم ارسلان فلک کو لانچ میں داخل ہوتا دیکھ کر مسکراتی ہوئی بولی جی مام آ گئے اور آپ کا سب کے لیے ایک گڈ نیوز بھی ہے. ارسلان نے احمد اور نائلہ خان کو دیکھتے ہوئے کہا کیسی گڈ نیوز بیٹے؟ نائلہ خان نے فلک کے چہرے کی جانب دیکھا جو لال انار بنا ہوا تھا. مام آپ دادی بننے والی ہیں. ارسلان کی بات سن کر نائلہ اور احمد خان دونوں کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ آئی تھی. ماشاء اللہ بہت مبارک ہو میرے بچے. نائلہ بیگم نے آگے بڑھ کر ارسلان کو فلک کے دونوں کے ماتھے چومتے ہوئے کہا ارسلان بیٹے اب تم نے ہماری بیٹی کا بہت خیال رکھنا ہے سمجھ گئے نا؟ احمد خان نے بات سنتے ہوئے ارسلان نے مسکرا کر سر کو ہاں میں ہلایا کہ فلک شرمیلی مسکراہٹ لیے منظر سے ہٹی تھی. فلک اپنے کمرے میں موجود کانوں میں پہنے آوازیں اتار رہی تھی. جب ہی ارسلان کمرے میں داخل ہوا اور قدم بہ قدم چلتا فلک تک آیا اور فلک کے پیٹ پر ہاتھ رکھتے اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپایا تھا. بہت شکریہ میری جان اتنی حسین تحفے کے لیے. جانتی ہو خود کو اس وقت دنیا کا وہ خوش قسمت ترین انسان تصور کر رہا ہوں. ارسلان نے ہمار آواز لہجے میں کہتے فلک کی گردن کو اپنے سلگتے ہی لمس نے سرخ کیا تھا کہ فلک کو ارسلان کی شیف کی چبن اپنی گردن پر محسوس کرتی سلگ اٹھی. ارسلان میں کافی تھک چکی ہیں چلیں سوتے ہیں. فلک کی بات سنتے ارسلان نے فلک کا رخ اپنی جانب موڑا اور بنا اس کی بات کا جواب دیے اس کے لبوں کو اپنی دست میں لیا. یہ فلک اس اچانک ہوئی افات پر بکھلا گئی جب یہ اپنے ہاتھوں کے مکے بنا کر وہ ارسلان کے سینے میں پانے لگی. ارسلان کے نس میں شدت محسوس کر کے تو فلک کو اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی ہی محسوس ہوئی تھی. اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی ارسلان نے اسی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کو اٹھایا تھا اور یوں بنا پیچھے ہٹے اٹھاتے ہوئے بیڈ کی جانے بڑھا. بیڈ پہ پہنچ کر ارسلان نے آستگی سے فلک کو بیڈ پر لٹایا اور خود کی شرٹ اتارنے دے اس پر سایہ فلک ہوا تھا کہ آفاق کے فلک آنے والے لمحہ کو سوچ کر سر ہوئی تھی. ارسلان پلیز میں سچ میں تھکی ہوئی ہوں پلیز سوتے ہیں نا اور میں تمہارے بنا کے ہی راتیں سو نہیں سکا اس لیے اب کچھ سکون چاہیے تم سے. فلک کی بے زور سی مزاحمت کو نظر انداز کیے ارسلان نے گبرو لہجے میں کہا. فلک کی کلاہی کو تکیے سے پن کرتے ایک بار پھر اس کی سانسوں اپنے گلاب بنایا تھا. دانیہ رات کے 7 بجے کچن میں کھڑی اپنے لیے کھانا بنا رہی جب اس کے نمبر پر سیف کے دوست حامد کی کال آئی. ہیلو دانیہ یار تم کہیں جہاں بھی ہو فوراً اس اسپتال آ جاؤ تمہیں ایڈریس فارورڈ کر دو. حامد لیکن ہوا کیا ہے تم اتنے گھبرائی کیوں ہے؟ دانیہ سیف کی طبیعت اچانک سے بہت بگڑ گئی ہسپتال میں ایڈمٹ ہے. حامد کی بات سنتے ہی دانیہ کے پاؤں تلے زمین نکل گئی اور سب کچھ چھوڑ کر وہاں سے تیزی سے باہر کی جانا بڑی. کیا ہوا حامد سیف کیا ہوا ہے؟ دانیہ آنکھوں میں آنسو لی گویا ہوئی. پتہ نہیں دانیہ ہم دونوں کلب میں بیٹھے تھے جب اچانک سیف کے سر میں شدید درد ہوا. سمجھا معمولی سا درد ہوگا لیکن درد اتنا شدید تھا کہ سیف کچھ دیر میں بہت شوگے میں بکھلا گیا اور پہلے ہسپتال ہی آیا اور ساتھ ہی تمہیں کال کر دی.
حامد پریشان کے لہجے میں گویا جب ڈاکٹر روم سے باہر آئے. پیشنٹ کے ساتھ کون ہے؟ جی ڈاکٹر ہم ہیں پیشنٹ کے ساتھ. دانیہ آگے کی جانب بڑھ کر کہا ٹھیک ہے آپ لوگ میرے ساتھ میرے روم میں آئیں. ڈاکٹر پلیز بتائیں سیف کو کیسا ہے؟ دانیہ لہجے میں پریشانی سے بھر گویا ابھی تو وہ بہتر ہے لیکن دراصل پیشنٹ کو برین ٹیومر ہے. ہم نے ان کو برین کے کچھ ٹیسٹ کے لیے اور ان کی رپورٹس یہی بتا رہی ہیں کہ پیشنٹ کا برین ٹیومر لاسٹ سٹیج پر ہے. فرض کریں کہ اگر ہم اس سے آپریٹ کرتے بھی ہیں تو ان کے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں. ڈاکٹر بات سنتے دانیہ کو پورا وجود جھٹکوں کی زرد میں تھا. آنسوؤں کا تر چہرہ ہو چکا تھا. آپ لوگوں کو جھوٹی تسلی نہیں دوں گا لیکن پیشنٹ کے پاس کچھ ہی وقت بچے ہیں, زیادہ سے زیادہ 2 ماہ, اس لیے جتنا ہو سکے ان کو اتنے ہی ہوش رکھنے کی کوشش کریں. ڈاکٹر کیا میں ابھی سیف سے مل سکتی ہوں؟ جی بالکل آپ مل سکتی ہیں اور ہمیں کچھ دوائیں لکھ کے دے رہا ہوں. یہ پیشنٹ کے باقاعدگی سے کورس کروانے ہیں آپ نے؟ جی ڈاکٹر آپ مجھے دے دیں میں لے لیتا ہوں. ہاں میں ڈاکٹر سلپ لیتا باہر جانا پڑ جبکہ اس کے پیچھے دانیہ بھی باہر آئی تھی. اس سے پہلے کہ نیچے جاتا دانیہ پکڑار پر ٹھہرا. سیف کو پتہ ہے کسی برین ٹیومر ہے؟ تمہیں بھی ہے نا؟ ہاں پتہ تھا دانیہ لیکن سیف نے مجھے تمہیں بتانے سے منع کیا تھا. قسم دے کے کہ مجھے نہیں پتہ تھا کہ ڈاکٹر خود سب بتا دے گا. حامد کی بات سنتے دانیہ کے آنسوں میں مزید روانی آئی تھی. اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی نرس اس کے قریب آئی. مس دانیہ کو پیشنٹ کو سیف بلا رہے ہیں. تم جاؤ میں میڈیسن لے کر آتا ہوں. دانیہ سر کو اسباب میں ہلاتی ہوئی آگے کی جانا پڑ گئی. مجھ سے شادی کرو گی دانیہ؟ سیف نے دانیہ کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی کہا جو اس کے لیے سیب کاٹ رہی تھی. اس کی بات سن کر دانیہ کے چلتے ہاتھ رکے تھے. نظریں اوپر کو اٹھی تھی. ضرور کروں گی سیف, تم سے نہیں تو اور کس سے کرنی ہے, لیکن پہلے تم ٹھیک تو ہو جاؤ. دانیہ نے سیف کی جانب دیکھتے ہوئے کہا جو اس کی جانب گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا. دانیہ میں ٹھیک ہوں, میں آج ہی نکاح کرنا چاہتا ہوں. سیف کی بات سنتے جیسے دانیہ جھٹکوں کی زد میں تھی. سیف نکاح اور وہ بھی آج؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دانیہ میں نہیں چاہتا کہ میں مزید کتنا جیوں گا لیکن میری جتنی بھی زندگی باقی ہے اس میں تمہارے سنگ گزار لینا چاہتا ہوں. سیف کے جذباتی ہونے پر دانیہ مزید پریشان ہوئی. سیف لیکن یہ سب اتنی جلدی کیسے؟ اس سے پہلے کہ دانیہ اپنے جمال میں کود سیف گویا ہوا میری آخری خواہش سمجھ کر ہی مان لو یار. سیف کے یوں کہنے پر دانیہ کو گویا تڑپ ہی اٹھی تھی. وہ نہ چاہتے ہوئے دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے سیف کی بات مان گئی تھی. اور یہاں سے آگے کیا ہوگا وہ دیکھیں گے ہم اپنے اس ناول کی 2nd ایپیسوڈ کے اندر. تب تک کے لیے اللہ حافظ.